Hello everyone, I hope you all are doing well. Today I am going to teach you the poem Somebody's Mother. It's a very beautiful poem and this poem has been written by Mary D'O'Brien. And what this poem teaches us, this poem tells us about the wonderful values of love and care for others. And the rhyming scheme of the poem is A, A, B, B, C, C, D, D. What are rhyming words? Rhyming words are the words which are pronounced in the same way. The words which pronunciation and in the same way. Like grey day, snow, slow, long throng, by eye. These are the rhyming words of the poem. Now we will discuss the poem stanza by stanza. Okay, let's start with the first stanza. The old woman was old, ragged, and grey, and bent with the chill of winter's day. The street was wet with recent snow, and the woman's feet were aged and slow. Let's understand the meaning of few difficult words in this poem. Ragged. Ragged means torn clothes and worn out clothes means फटे हुए कपड़े. Grey. Grey means aged, means old. Okay. Now let's come to the explanation of the first stanza. This is the poem about an old woman who was standing near the road, and it was winter's day, and the day was very cold. Now let's see what happens at that day. What happened at that day? The poem starts with a woman who had worn torn clothes and she was very old. जो पोयम है वो एक ओल्ड लेडी से स्टार्ट होती है. उसने पुराने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी. It was winter season and the day was so cold that the old woman was bent down. As I had told you earlier that it was a winter's day, it was winter season and the day was very cold that the old woman was bent down. Means इतनी ठंड थी उस दिन कि उस औरत ने अपने आप को गर्म रखने के लिए वो ऐसे नीचे की तरफ झुकी हुई थी. And the streets were white because of recent snow. She was walking very slowly because of her old age. उस दिन क्या था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी और बर्फ़ की वजह से जो स्ट्रीट्स थी वो बिल्कुल वाइट हो रही थी और वो जो औरत थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी. बहुत धीरे धीरे क्यों चल रही थी? बिकॉज जो वो ओल्ड लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा एजिड थी और उम्र की वजह से उसके जो पैर थे वो तेज़ी से उनकी वजह से नहीं चल पा रही थी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng of the human being who passed her by. None heeded the glance of her anxious eye. Let's look at the difficult words and their meanings. Amid, in the midst of. Midst means in the middle of something. Throng means crowd, people. Heeded, paying attention or noticed. Glance, caring look. Anxious eye, worried look. Okay, anxious eye means somebody is worried. Okay, let's come to the explanation of the first stanza. She had been waiting for a long time to cross the road because she was too old to cross the road by herself. वो वहाँ पे वेट क्यों कर रही थी? वो रोड खुद क्रॉस क्यों नहीं कर सकती थी? वो रोड खुद क्रॉस नहीं कर सकती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी. ठीक है ना? और जब वो ओल्ड थी तो मतलब वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो खुद से लोगों के बीच में से जो रोड है वो रोड को क्रॉस कर सके. बट of the human being who passed her by, none heeded the glance of her anxious eye. But हुआ क्या? The people who were passing by her did not pay any attention to her. जो भी लोग वहाँ से गुजर के जा रहे थे उन लोगों ने उस औरत की तरफ कोई भी ध्यान
नहीं दिया और ना ही किसी ने कोशिश करी कि उसको उसका हाथ पकड़े, उसको रोड क्रॉस करवा दे। ये चीज़ क्या शो करती है? ये जो स्टैंजा है ये शो करता है कि हम लोग कितने क्या हो गए हैं, मतलब हाउ सेल्फिश वी हैव बिकम, हम कितने सेल्फिश बन गए हैं। हम ये देख कर भी अनदेखा कर देते हैं कि किसी को हमारी ज़रूरत है और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। एंड द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद दैट ओल्ड लेडी, यही चीज़ उस ओल्ड लेडी के साथ हो रही थी। लोग उसको देख कर भी अनदेखा कर रहे थे, ठीक है। they were not paying any attention to her. Now let's start third stanza. Down the street with the laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. The flock of sheep, it's a simile. Simile means the boys have been compared with the flock of sheep because when they came out of the school they were uncontrolled, they were running, they had no discipline, they were not in discipline at all. Okay, hailing the snow piled white and deep. Let's have a glance on some difficult words with their meanings. Glad, very happy and pleased. Hailing at the snow, shouting merrily at the snow. Piled, piled means heaped up. Piled होता है इकट्ठी से स्नो होती है ना, like in a heap, that's is heaped up. Let's start the explanation of the stanza. When the boys came out of the school, they were very happy. They were laughing and enjoying. Okay? The boys scattered the deep snow with their feet. Or when they came out of the school, they were playing with the snow and they were scattering the snow with their feet. Means पैर से उस स्नो को उछाल रहे थे वो। अब हुआ क्या, अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो मीन्स बच्चों को क्या मिला, उनको स्कूल के 6-7 घंटों से क्या फ्रीडम मिली और वो खुशी से भागने लगे रोड पर, मतलब वो भागकर आ गए। और वो कैसे आए, जैसे आ फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे भेड़ें होती है ना उनकी तरह। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, और स्नो को वो क्या कर रहे थे, अपने पैरों से स्कैटर कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट। Past the woman so old and grey, hastened the children on their way. None offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stare. Let's have a glance on the meanings. Hastened, hurried, meek, too gentle to defend oneself, means unable to defend herself or to protect oneself or herself. Timid, timid, shy and scared, डरा हुआ और शर्माना, like, but यहाँ पे डरा हुआ है। Stare, move or walk. अब now, when the boys came out of the school like a flock of sheep, they passed very hurriedly. They passed very hurriedly. कहाँ से? They passed the old woman in great hurry. मतलब वो जो बूढ़ी औरत थी उसके पास से वो जल्दबाजी में भागकर चले गए। They did not offer any help to that lady. उन्होंने उसको ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि क्या हम आपको रोड क्रॉस करवाएं या आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने कोई उसको हेल्प ऑफर नहीं करी। And the old lady was very afraid. She was very afraid that she could not cross the road by herself. और वो इतनी डरी हुई थी कि वो रोड को खुद क्रॉस नहीं कर सकती थी। What was the reason of her not crossing the road? उसके रोड ना क्रॉस करने के रीज़न क्या थे वो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन अब तक आपने क्या इस पोएम से सीखा है, उसका मीनिंग जो भी आपने सीखा है, आई जस्ट कंक्लूड दैट
देखिए जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत ज़्यादा कैसी थी, मतलब उसके जो क्लोथ्स थे वो फटे हुए थे, वो वीक थी, है ना, और वो अपने आप से रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी। अब वहाँ से आदमी जा रहे थे, जो भी क्राउड जा रही थी, उसने भी उस औरत को कोई हेल्प ऑफर नहीं करी। फिर उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है, वहाँ से बच्चे आते हैं काफ़ी सारे, और वो वहाँ से औरत के पास से निकल के जाते हैं, लेकिन उन बच्चों ने भी उस औरत को कोई भी हेल्प ऑफर नहीं करी। Lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street। जो हमने अभी फिनिश करा था, ये उसी का एक रिमेनिंग स्टेंजा और रह गया था। उसके बाद जो पोइम में थोड़ा चेंज आने वाला है। लेट फिनिश इट फर्स्ट। लेस्ट परहैप्स ट्रैम्पल वॉक ओवर मीन्स कुचल देना, ऊपर से निकल जाना। देखिए अभी हम पढ़ रहे थे कि वाई शी कुड नॉट क्रॉस द रोड। शी कुड नॉट क्रॉस द रोड बिकॉज शी वॉज अफ्रेड। वो रोड क्रॉस क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि उसे डर था। एक तो शी वॉज ओल्ड, इट एंड सेकेंड थिंग द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, एंड थर्ड शी वॉज स्केयर्ड। स्केयर्ड ऑफ बींग वॉट? स्केयर्ड ऑफ बींग रन ओवर बाय द व्हील्स ऑफ कैरियजेस एंड द फीट ऑफ हॉर्सेस। उसे डर था कि जो वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं उनके पहिए या जो घोड़े हैं उनके पैरों के नीचे वो क्या कहीं कुचल ना जाए। यही वजह थी कि वो खुद से रोड क्रॉस नहीं कर। At last came one of the merry troop, the gayest lady of all the group. He paused beside her and whispered low, I'll help you cross if you wish to go. अब देखिए what happened after this? When nobody paid attention to the old lady, the happiest group of the school came out. स्कूल में से बच्चे बाहर आए, मतलब एक ऐसा ग्रुप है इसमें सारे बच्चे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, और उनमें से जो हैप्पीएस्ट बॉय था, लेडी मीन्स बॉय, गेस्ट मीन्स हैप्पीएस्ट, वेरी हैप्पी, एंड मैरी ट्रूप अ हैप्पी ग्रुप. He paused beside her and whispered low, I'll help you cross if you wish to go. So that boy came to the old lady and stopped beside her. वो उसके पास रुक गया और जाके क्या बोला? He offered help to the old lady and asked her that I would help you to cross the road if you wish to go. उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुमको रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकता हूँ. ये किसने कहा? ये उस हैप्पीएस्ट बॉय ने कहा जो ओल्ड लेडी के पास आके रुका और उसको अपनी हेल्प ऑफर की. ओके. हर एज्ड हैंड ऑन हिज strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that her own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. Let's look at the meaning of some difficult words. Trembling, shivering, कांपना. Content, satisfied. Okay? Content, you feel content when you do something good. Okay. अब जो थी, जो old lady थी, the old lady put her hands on his arms, on whose arms? On the arms of that young boy. And the boy helped her crossing the road without causing any harm to both. जो ओल्ड लेडी थी उसने जो अपने हैंड्स थे वो उसके कंधे पर रखे, और जो वो बॉय था उसने उस लेडी को, ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करने में हेल्प करी, और उसको हेल्प करी. और जब उसने हेल्प करी तो ना तो कोई प्रॉब्लम उस ओल्ड लेडी को होनी थी, ना कोई प्रॉब्लम उस खुद को हुई थी. तो इस तरह से उसने क्या करा, उस लेडी को रोड क्रॉस करवा दिया. और जब उसने उसको रोड क्रॉस करवा दिया तो ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड्स. तो वो अपने किसके पास गया? फ्रेंड्स के पास गया. और जब वो फ्रेंड्स के पास गया तो दो बातें थी. वन, ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड सेकेंड, ही वॉज कंटेंटेड. ही वॉज कंटेंटेड. वाई?
देखिए, वेन एवर यू हेल्प एनी बडी, तो आपको अंदर से मतलब गुड फीलिंग्स आती हैं। जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको अच्छी वाली फीलिंग्स आती हैं। एंड द सेम फीलिंग्स वर ऑल ओवर दैट यंग बॉय। और वही सब फीलिंग किसको थी, आ रही थी, अब उस यंग लड़के को आती, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। उसने एक ऐसी औरत को हेल्प करी थी हु वॉज अनेबल टू क्रॉस द रोड, और जो भी लोग वहाँ से जा रहे थे, नन ऑफ देम ऑफर्ड हेल्प टू दैट ओल्ड लेडी। Okay. She is somebody's mother, boys, you know. For all she is aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. देखिए, lend a hand means helping somebody. आफ्टर हेल्पिंग द ओल्ड लेडी, उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के बाद जो वो लड़का है, ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के पास गया एंड उनको जाकर द ओल्ड बॉय एक्सप्लेन्ड हिज एक्ट ऑफ हेल्पिंग द ओल्ड लेडी टू हिज फ्रेंड्स, रेफरिंग द सिमिलर सिचुएशन इन विच हिज ओन डियर मदर कुड रन इन टू द फ्यूचर. He said that his mother would be helped by someone when she traveled alone, tired and aged. जब वो उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के बाद अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, तो वहाँ जाके वो अपने फ्रेंड्स को सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और उनको वो बताता है कि उसने कैसे उस ओल्ड लेडी की हेल्प करी रोड को क्रॉस करने में. और फिर उसके बाद वो ये भी बोलता है कि एक दिन फ्यूचर में जब मेरी मदर है वो भी ओल्ड हो जाएगी और मैं उनके पास नहीं रहूँगा, तो कोई फेलो पैसेंजर मीन्स जैसे मैंने आज उस ओल्ड लेडी की हेल्प करी वैसे ही फ्यूचर में कोई मेरी मदर की हेल्प भी करेगा. ओके, तो दिस वॉज अबाउट ऑल दीज स्टैंजास. जो बॉय था उसने ओल्ड लेडी की हेल्प की और ये सारी सिचुएशन जाके उसने फ्रेंड्स को बताई. उसके बताने का मतलब ये भी था कि भाई हेल्प आपको भी करनी चाहिए. अगर हम ये किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ क्या होता है, अच्छा होता है. इसलिए ये सारी जो स्टोरी थी उसने जाके अपने फ्रेंड्स को बताई किस तरह से उसने हेल्प करी. और जब वो अपनी मदर के पास नहीं रहेगा, एक दिन उसकी मदर है जो वो ओल्ड हो जाएगी, तो कोई ना कोई उसकी हेल्प भी इसी तरह से ज़रूर करेगा. And somebody's mother bowed low her hat in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. Bowed low her head means said to pray, प्रार्थना करना. देखिए, the boy helped the old lady and he went back to his friends. ओल्ड लेडी की उसने हेल्प कर अपने फ्रेंड्स के पास गया और वहाँ उसने सारी सिचुएशन बताई. उसके बाद जो ओल्ड लेडी थी वो अपने घर चली गई और अपने घर जाने के बाद व्हाट डिड शी डू? द ओल्ड लेडी प्रेड टू द गॉड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर क्रॉस द रोड. घर जाके उसने क्या किया? घर जाके उसने उस लड़के के लिए भगवान से प्रार्थना करी जिसने दिन में उसकी हेल्प करी थी, है ना. और शी प्रेड टू गॉड टू बी काइंड विद हिम. उसने भगवान से प्रार्थना करी कि उसके लिए हमेशा अच्छा करना, क्योंकि वो भी किसी ना किसी का सन है, किसी का प्राइड है, किसी की खुशी है. दिस वॉज अ ब्यूटिफुल पोयम. और जो ये पोयम है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ आ गई है. इफ़ नॉट, इफ समथिंग इज़ लेफ्ट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या कुछ समझ नहीं आया है. ओके, एक बार अगेन आपको इस पोएम को पूरे अच्छे से रीड करना है और इसकी समरी को देखना है. ठीक है. स्टार्टिंग से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड का दिन होता है, विंटर का डे होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है. वहाँ एक ओल्ड लेडी है, वो वहाँ पे खड़ी होती है और वो रोड को क्रॉस करना चाहती है. वो रोड को क्रॉस नहीं कर पाती है क्योंकि उसके कई रीज़न होते हैं. एक तो वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होती है, दूसरा क्या होता है उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, तीसरा वो डरी हुई होती है कि कहीं
किसी के नीचे आके वो कुचल ना जाए, कहीं मतलब हॉर्सेज या कैरियजेस के नीचे आके। तो वहाँ पे वो वेट कर रही होती है काफ़ी देर से। बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ से निकल के जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई भी उसको मदद करने के लिए हेल्प ऑफर नहीं करता है। काफ़ी देर बाद एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ आते हैं स्कूल से, उनमें से एक लड़का आता है, वो आके उस लेडी के पास रुकता है और उसको धीरे से बोलता है कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो ओल्ड लेडी होती है वो उसके शोल्डर पे क्या अपना हैंड रखती है और वो उसको आसानी से रोड को क्रॉस करवा देता है। जब उसे रोड क्रॉस करवा देता है तो उसको रोड क्रॉस करवाने के बाद वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और फ्रेंड्स के पास जाकर वो पूरी सिचुएशन को क्या एक्सप्लेन करता है कि आज मैंने किस तरह से ओल्ड लेडी की हेल्प करी। ठीक है, और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी मदर हैं जो वो भी बूढ़ी होंगी और हो सकता है मैं उनके पास ना रहूं, तो कोई ना कोई तो उनकी हेल्प कर देगा जिस तरह से मैंने करी। तो इस उम्मीद में उसने उस ओल्ड लेडी की हेल्प करी थी। ठीक है, उसने अपना काम कर दिया अच्छे से। अब उसके बाद जो ओल्ड लेडी है वो अपने घर जाती है शाम को, और घर जाके भगवान से प्रार्थना करती है कि जिस लड़के ने मेरी हेल्प करी है आप उसके लिए सब कुछ काफ़ी अच्छा करना, क्योंकि वो भी किसी का क्या है, किसी का बेटा है। ठीक है, किसी की खुशी है वो, है ना, और किसी का क्या है, सम्मान है, प्राउड है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, लेट्स ओवर द क्लास फॉर टुडे।